Hello students, I welcome you all on Rescue Regiskill, and we are dealing with chapter number 3, that is inheritance and variation. Last time we have studied some of the points related to chromosomal theory of inheritance, okay, and we learned that chromosomes are the carriers of hereditary material, as similar as genes or factor what the Mendel has said. Mendel ने जो बोला था, factors are responsible for hereditary character. Same way, chromosomes are also the carrier of hereditary characters, and it's what said in the theory of chromosomal inheritance of chromosome. Okay. So this is what the chapter 3. And this is lecture number 9. In this lecture number 9 we are dealing with chromosome. So chromosome के बारे में आज हम लोग बोलेंगे. Chromosome का definition, chromosome क्या होता है, then the structure of chromosome, then the chromosome number, क्या है chromosome number, किस लिए important, and sex chromosome in human being. So these are the points that we'll discuss today. Okay. So let us start with the chromosome. Now, what chromosome exactly? The chromosome is a filamentous body. What chromosome is? Is a filamentous body present in eukaryotic nucleus. The eukaryotic nucleus. Eukaryotic cell जो होता है, उनके nucleus में chromosome होता है. So, say for example, this is the cell. ये एक cell है. Okay, this is the cell, and inside the cell you can see the nucleus. Correct? So in the nucleus itself, you can see the chromosome. Initially, these are what very thin thread-like structures. But at the time of cell division, this thread-like structure get condensed and form a structure like this. Maybe आप बोल सकते हैं कि एक thread-like structure, एक छोटे-छोटे chromosome आपको दिखाई देते हैं under microscope. Okay, so chromosome अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम देखें तो कलर देखते हैं. सो क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है. क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी. ए कलर्ड बॉडी इट अपीयर्स अंडर माइक्रोस्कोप, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं. ओके, नाउ क्रोमोसोम्स आर फिलामेंटस बॉडीज. दीज आर फिलामेंट जैसे दिखा देते हैं. फिलामेंटस बॉडी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यानी कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल नथिंग बट डीएनए, एंड डीएनए इज व्हाट पैक्ड इन क्रोमोसोम. सो बेसिकली यू कैन सी द क्रोमोसोम. कुछ न्यूक्लियस से दिखा देगा, जैसे वो डिवीजन में एंटर होंगे तो दे विल लुक लाइक दिस, एंड फाइनली क्रोमोसोम विल अपीयर रॉड लाइक स्ट्रक्चर और कैन से फिलामेंटस स्ट्रक्चर. ओके, द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय वाल्दियर. वाल्दियर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? क्रोमोसोम का नामकरण किया. Okay, the term was coined by, ये coin किसने किया था टर्म? वाल्दियर. 1888 में क्रोमोसोम का नामकरण किया गया. नेम ऑफ द साइंटिस्ट व्हाट? वाल्दियर. ये साइंटिस्ट का नाम है W. वाल्दियर. 1888 coined the term chromosome. Okay, the size of chromosome, if you see the chromosome, they are very small, you can say microscopic bodies. You can observe under microscope, and if you see the length of the chromosome, it can range from 1 micrometer to 33 micrometers. मैक्सिमम कितना? 1 micrometer to 33 micrometer, इतना उनका साइज है. ओके, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर से लेके 33 माइक्रोमीटर तक. ओके, दिस इज द लेंथ. अगर ये लेंथ हम पकड़ेंगे, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, इसका लेंथ क्या है? दिस इज द लेंथ. ये लेंथ है इसका. ये जो लेंथ है, ये मिनिमम कैसे बोला है उन्होंने? 0.1 माइक्रोमीटर. 0.1 माइक्रोमीटर टू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 33 माइक्रोमीटर. 33 माइक्रोमीटर, 0.1 टू 33 माइक्रोमीटर, ये इसका लेंथ. छोटा क्रोमोसोम या बड़ा क्रोमोसोम मैक्सिमम कितना? छोटा मैक्सिमम 0.1 माइक्रोमीटर होगा. मैक्सिमम लंबा कितना हो सकता है? 33 माइक्रोमीटर हो सकता है. ओके, एंड द थिकनेस, इसका जो थिकनेस है, दिस इज द थिकनेस. ये थिकनेस कितना रहेगा? थिकनेस कैन रेंज फ्रॉम कैन से 0.2 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर. तो थिकनेस है, ये थिकनेस अगर लेंथ रहेगा तो थिकनेस क्या है उसका? थिकनेस है 0.2 टू कितना?
2 micrometer. Okay, this is the thickness of the chromosome. So chromosomes are observed in nucleus. वाल्दियर ने उनका नामकरण किया है, उनका लेंथ मिनिमम 0.1 मैक्सिमम 33 माइक्रोमीटर और उसका जो थिकनेस है 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक रहेगा. दिस इज व्हाट द क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये जो क्रोमोसोम मैंने पहले बोला कि क्रोमोसोम विजिबल कब होते हैं, दे आर विजिबल व्हेन द सेल्स आर अंडर डिवीजन. ओके, अगर ये न्यूक्लियस में विजिबल कब होंगे, सो इनिशियल दे विल अपीयर लाइक दिस एंड एट दैट स्टेज वी कैन से मेटाफेज, और मेटाफेज के पहले थोड़ा वो कैसे दिखा देते हैं, ऐसे रॉड शेप्ड ऐसे दिखा देंगे. सो दिस इज व्हाट जस्ट बिफोर द मेटाफेज, एट द टाइम ऑफ मेटाफेज आपको ऐसे दिखा देंगे क्रोमोसोम. करेक्ट. सो दे विजिबल एंड इफ यू कैन से गिव स्टेन टू देम, अगर उनको स्टेन करते उनको कलर देते हैं, वो पूरे आपको हाई पावर माइक्रोस्कोप के हाई पावर में आपको दिखा देंगे ऐसे क्रोमोसोम. करेक्ट. सो दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन. वो खुद का रेप्लिकेशन खुद करते हैं, यानी कि वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, उनका रिप्रोडक्शन खुद कर सकते हैं वो. दैट्स व्हाट यू कैन से दे आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन. वो रेप्लिकेट हो जाते हैं. सो डीएनए रेप्लिकेशन हम लोगों ने 11th में स्टडी किया होगा थोड़ा सा. सो दैट्स व्हाट यू कैन से क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट इजीली. उनके पास उनका खुद का मशीनरी होता है फॉर रेप्लिकेशन. सो दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन. सो दिस इज व्हाट द क्रोमोसोम. क्या है क्रोमोसोम? These are what filamental structures available in the nucleus. Okay. So chromosomes, they play vital role in heredity, mutation, variation and evolutionary development. क्या का उनका रोल है? They play vital role, pivotal role उनका, यानी most important role उनका क्या है? Heredity, transfer of character from generation to generation. Generation से generation तक, यानी कि parental generation से अगर आप कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो किसके सहारे करेंगे? क्रोमोसोम के सहारे करेंगे. कहा जाएगा वो ऑफस्प्रिंग में जाएगा. करेक्ट. म्यूटेशंस, कोई सडन चेंज होगा तो क्रोमोसोम में हो जाता है एंड दैट म्यूटेशंस आर परमानेंट, इरिवर्सिबल होते हैं. वो चेंज आ जाता है, परमानेंट चेंज होगा तो म्यूटेशन क्रोमोसोम में होता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन. वेरिएशन होगा इट्स बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है. रिकॉम्बिनेशन में जीन्स इधर के उधर हो जाते हैं तो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इवन दे आर व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. एवोल्यूशन होगा, उत्क्रांति होती तो क्रोमोसोम के बिना होगी नहीं, बिकॉज क्रोमोसोम्स में म्यूटेशंस होते हैं या क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है. बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी वेरिएशंस, एंड वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन में चांसेस होते हैं. ओके, नेचर सिलेक्ट्स गुड के ऑफ विच स्पेसीज? यूकैरियोटिक स्पेसीज. जितने भी यूकैरियोटिक स्पेसीज है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, ऐसे सब यूकैरियोटिक स्पेसीज का जो इवोल्यूशन होता है इट्स बिकॉज ऑफ थ्रू कैन से क्रोमोसोम्स और कैन से डीएनए अवेलेबल इन द क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम्स प्ले वाइटल रोल इन हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशंस एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ यूकैरियोटिक स्पेसीज. इफ यू स्टडी द केमिकल नेचर ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में क्या है केमिकली? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम किसके बने? क्रोमोसोम डीएनए के बने. ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन. विल सी दैट पार्ट लेटर ऑन. हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करेंगे उसमें हम लोग पूरा स्टडी करेंगे. बट डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या बनाया होता है क्रोमोसोम, उसके साथ साथ उनको पैक करने के लिए आपको हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लगते हैं. सो क्रोमोसोम्स केमिकली अगर आप उनको एनालाइज करते हैं तो क्या है, क्या नेचर है केमिकल इसका? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. ये क्रोमोसोम का केमिकल नेचर है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम? द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज व्हाट बेसिकली द ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. मीन्स क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी के कैरियर्स है वो, उनके बिना हेरिडिटी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा नहीं. सो दीज आर व्हाट बेसिकली द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन और उनका जो ऑफस्प्रिंग, उनका जनरेशन, दोनों का जो कनेक्टिंग लिंक है ये होते हैं क्रोमोसोम. वो पास होते एक जनरेशन दूसरे जनरेशन. सो दिस इज व्हाट अबाउट कैन से क्रोमोसोम. इसके बारे में हम लोगों ने भी देखा क्रोमोसोम क्या है, कहाँ पर होते हैं. करेक्ट. अब देखते हैं क्रोमोसोम नंबर का क्या रोल है. व्हाट इज क्रोमोसोम नंबर? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक. हर एक स्पेसिस में स्पेसिफिक नंबर होता है. इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ कैन से ह्यूमन बींग, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 46 है. इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ ड्रोसोफिला, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं आपको पता है? 4 क्रोमोसोम होता है. करेक्ट. जैसे
मेज या कैन से व्हीट, हर एक स्पेसिस में उसका अपना अपना नंबर होता है. सो क्रोमोसोम नंबर इज वेरी स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिस. पर्टिकुलर स्पेसिस के लिए वो कांस्टेंट होता है. एक स्पेसिस का नंबर दूसरे स्पेसिस से कभी मैच होगा या कभी नहीं होगा, अलग अलग नंबर होता है. एंड देयरफॉर इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी. इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से स्पेसिस से कौन सी स्पेसिस इवॉल्व हो चुकी है, ये अगर देखना है तो फाइलोजेनी हम स्टडी करते हैं. कैसे ओरिजिन हुआ वो अगर स्टडी करना है तो फाइलोजेनी स्टडी करते हैं. टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, ये सब हम लोग करते हैं. एनिमल का नॉमेनक्लेचर करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम ऑल्सो. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो है बट मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा, जैसे मेंडल ने बोला है कि भाई अगर जीन्स है, अगर टॉल के लिए अगर टॉल जीन हमारे पास है तो टॉल ही बनेंगे, डॉप जगह जीन होगा तो डॉप बनेंगे. करेक्ट. सो मॉर्फोलॉजिकल जो आपको मिल जाता है कैरेक्टर इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ द कैन से स्पेसीज. और फाइलोजेनी अगर हमने देखा है, टैक्सोनॉमी स्टडी करना है तो क्रोमोसोम और उसका सब इम्पॉर्टेंट है इसमें. बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये बेसिक नंबर क्या होता है, देखो दिस बेसिक नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये ध्यान में रखना है आपको. क्या ध्यान में रखना है, बेसिक नंबर. बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि n 2n, हमेशा बोलते हैं ना n नंबर, n इज व्हाट, सपोज n इज 23, 2n इज व्हाट 46. सो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर है. व्हाट इज दिस n क्या है और 2n क्या होता है, ये हमें पता है. इट्स अ हैप्लॉइड नंबर, दिस डिप्लॉइड नंबर. सो हैप्लॉइड नंबर मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन द गैमेट. जब गैमेट बनते हैं, गैमेट में जो नंबर होता है दैट्स हैप्लॉइड नंबर. सोमैटिक सेल या गैमेट बनने के पहले गैमेट जिससे बनते हैं वो डिप्लॉइड सेल होते हैं. करेक्ट. रिप्रोडक्टिव सेल्स वो क्या होते हैं, वो डिप्लॉइड सेल होते हैं. सो सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉइड, रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे गैमेट्स वो हैप्लॉइड होते हैं. सो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, डिप्लॉइड होता है नंबर एग्जैक्टली द बॉडी सेल का जो नंबर है वो डिप्लॉइड होता है. गैमेट्स में नंबर एग्जैक्टली हाफ होता है उसका 23, दैट्स व्हाट n नंबर. और बेसिक नंबर होता है x, इसको बोलते हैं हम लोग x, यानी कि वो बेसिक नंबर है. कभी कभी बेसिक नंबर और हैप्लॉइड नंबर सेम होता है, बट कभी कभी अगर स्पेसिस पॉलीप्लॉइड है तो हैप्लॉइड नंबर और बेसिक नंबर में वेरिएशन आ जाता है. ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आप ध्यान में रखो, बेसिक नंबर यानी कि बेसिक सेटअप जो क्रोमोसोम है उसको हम x बोलते हैं. सो बेसिक नंबर ऑफ डिनोटेड इज व्हाट, बाय x. इससे क्या बोलते हैं, x से डिनोट करते हैं. जो बेसिक नंबर होते हैं x से डिनोट करते हैं. ओके. Now ploidy एक पार्ट होता है, इट्स व्हाट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नॉट ओनली द रिलेटेड टू द क्रोमोसोम बट व्हाट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. इट इज रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये बेसिक जो नंबर होता है दैट्स x, इसका जितनी बार रिपीटेशन होगा उतना उसका नंबर बढ़ेगा. करेक्ट. अगर यहाँ पर देखते हैं, दिस इज व्हाट, सपोज x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 है, x इज इक्वल टू 2 हम लोग देखते हैं, समझो. और यहाँ पर कितने हुए, 2 के 4 सेट बने. करेक्ट. अगर ये x इज हैप्लॉइड नंबर तो n इज एग्जैक्टली 2 और ये डिप्लॉइड नंबर होगा तो 2n इज इक्वल टू कितना है, 4. यहाँ पर हम बोलते हैं x एंड n आर इक्वल, x एंड n आर इक्वल. करेक्ट. सो कभी कभी क्या होता है, x और n में फर्क होता है, n इज डबल ऑफ द x कभी कभी हो जाता है, बिकॉज गैमेट में जो नंबर होता है उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं. गैमेट में नंबर होता है उसको हैप्लॉइड नंबर बोलते हैं. ओके. सो कभी कभी बेसिक से डबल होता है. सो आपको डिप्लॉइड देखिएगा, डिप्लॉइड नहीं, वो हैप्लॉइड नंबर होता है गैमेट वाला. सो हैप्लॉइड गैमेट बोलते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन गैमेट आर हैप्लॉइड. ठीक, इसको हैप्लॉइड से डिनोट करते हैं, बट बेसिक ये होता है. ओके. सो प्लॉइडी क्या होता है, इट इज रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. नंबर ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज वन सेट, x इज वन सेट. अब यहाँ पर कितने, 2 सेट बने. सो 2n के हैप्लॉइड नंबर अगर ये 2 का है तो डिप्लॉइड नंबर कितना होगा, 4 होगा. ट्रिप्लॉइड नंबर 3n कितना होगा ये 6. 2 प्लस 2 प्लस 2. और टेट्राप्लॉइड नंबर कितना होगा, जैसे 4n 8. इसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8. So 4 sets of chromosome. So this is what
Ploid is basically, it is repetition of primary basic number of chromosome in a cell or number of complete sets of chromosome in a cell. ये होते हैं ploidy. Ploidy means the number of chromosome in a cell. Okay. Ploidy के दो टाइप होता है. Ploidy is of two different types. For example, euploidy जो true ploidy बोलते हैं, और दूसरा होता है aneuploidy. It's not true ploidy. So true ploidy और euploidy क्या है? The chromosome number in the cell is exact the multiple of basic number. जो क्रोमोसोम नंबर होता है exactly multiple of basic number. बेसिक हम लोगों ने बोला x, कभी कभी x इज इक्वल टू n. n का क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा, जैसे 1n, 2n, 3n, 4n, 5n. ओके, सो जो बेसिक नंबर है अगर वो n और ये सेम होगा तो थोड़ी देर के लिए हम बेसिक भूल जाते हैं. n इज व्हाट सपोज बेसिक नंबर है. 1n यानी कि ये बेसिक है, उसका हैप्लॉइड नंबर है, ये डिप्लॉइड नंबर है, ये ट्रिप्लॉइड है, ये टेट्राप्लॉइड है, ये पेंटाप्लॉइड है. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट क्या कर सकते हैं हम लोग? बोल सकते हैं यूप्लॉइड कैन बी मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड. ओके, सो व्हाट इज यूप्लॉइडी? क्रोमोसोम नंबर इन अ सेल इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक नंबर. सो मोनोप्लॉइड, इसको हम कभी कभी हैप्लॉइड भी बोलते हैं. ओके, सो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम x इज इक्वल टू n. अगर मोनोप्लॉइड होगा तो हम उसको बोलते हैं x, अगर वो हैप्लॉइड होगा तो इसको बोलेंगे n. करेक्ट. डिप्लॉइड 2n, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखते हैं भी n इज इक्वल टू 4. हैप्लॉइड नंबर इसका 4 है यहाँ पर. दिस इज द सेल, ये सेल है, आपको पता है ये सेल है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस. करेक्ट. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम and chromosomes are visible at the time of cell division. ये हम लोगों ने देखा पहले. ओके, सो n इज इक्वल टू 4. यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, 1, 2, 3 एंड 4. दिस इज वन सेट. दिस इज व्हाट वी कैन से. अभी मोनोप्लॉइड होगा तो क्या होगा? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. दिस इज मोनोप्लॉइड, हम उसको बोलते हैं मोनोप्लॉइड. करेक्ट. वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, x इज इक्वल टू n. डिप्लॉइड 2n, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पर देखो ये 4 यहाँ पर आ गए, जैसे 4 यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पर भी 4 है, 1, 2, 3 एंड 4. इसका डुप्लीकेशन हो चुका है, समझो थोड़ी देर के लिए. दिस व्हाट? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पर कितने? 2 सेट्स हैं. दिस व्हाट? 2n. ओके, ये क्या है? डिप्लॉइड. दिस इज डिप्लॉइड. यहाँ पर आपको कितने दिखाई देते? ये देयर आर 3 सेट्स. ये 4 का एक सेट है, सेट 2. ये 4 का दूसरा सेट है, ये 4 का तीसरा सेट है. ओके, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. सो 3n and what called triploid. Tri means what? 3. Triploid. और यहाँ पर आपको दिखाई देते 4 सेट्स. सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 एंड सेट नंबर 4. दिस व्हाट? 4n and it's called tetraploid. Tetraploid. Correct. So euploid is what? Chromosome number in a cell is exact multiple of basic number. मोनोप्लॉइड में होगा n, डिप्लॉइड में होगा 2n, ट्रिप्लॉइड में होगा 3n और टेट्राप्लॉइड में होगा 4n. 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम. दिस व्हाट? ट्रू. यहाँ पर सेट वैसे कि वैसा डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, 4 टाइम्स का होगा. So this is what coming under euploidy, true ploidy. Correct. So we'll see now aneuploidy. Aneuploidy is addition or deletion of one or more chromosomes. Addition or deletion of one or more chromosomes. So what is aneuploidy? Aneuploidy is what? Addition or deletion of one or more chromosomes to the total number of chromosomes in a cell. जो total number of cells, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, उसमें एक एडिशन या 2 एडिशन हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अन्यूप्लॉइडी या डिलीशन. एक क्रोमोसोम डिलीट होगा, कम होगा, एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा, उसको हम बोलेंगे अन्यूप्लॉइडी. सो टोटल जो सेट होंगे, सेट में कोई एक क्रोमोसोम ज़्यादा, एक क्रोमोसोम कम होगा, उसको बोलते हैं हम अन्यूप्लॉइडी. फॉर एग्जांपल दिस इज सपोज हैप्लॉइड सेल. एक हैप्लॉइड सेल है, इसमें टोटल एक सेट है, 1 सेट. दैट्स व्हाट हैप्लॉइड सेल. इसमें है आपके टोटल किन से n नंबर.
ये n नंबर है. ओके, सो n इज इक्वल टू 4. यहाँ पर अगर 4 क्रोमोसोम n हैप्लॉइड नंबर है इसका, हैप्लॉइड नंबर n, इसको n इक्वल्स टू कितना बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है. दिस फर्स्ट सेट, करेक्ट. सेट क्या है, एक सेट में 4 क्रोमोसोम है. सो इन दिस अगर डिप्लॉयड सेल होगा तो कितने होने चाहिए, 2 सेट होने चाहिए. बट यहाँ पर देखो, सेट नंबर 1, फर्स्ट सेट में ये 4 क्रोमोसोम है, सेकेंड सेट में 3 क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम इज मिसिंग फ्रॉम दिस. सो दिस इज व्हाट बेसिकली a loss of 1 chromosome. If there is loss of 1 chromosome or 2 chromosome, or loss addition of 1 chromosome or can addition of 2 chromosome, उसके ऊपर से अनयूप्लॉइडी को क्या बोला जाता है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी. हाइपो मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर लेस देन दी कैन से, जो सेट में 1 या 2 क्रोमोसोम का लॉस होगा तो उसको बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी, यानी बिलो, टोटल नंबर से कम होगा 1 क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम. हाइपरप्लॉइडी मीन्स इन एडिशन टू द सेट, जो सेट है उसमें एडिशन होगा, 1 क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम, यहाँ पर 1 क्रोमोसोम ऐड है, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम ऐड है. सो हाइपर मीन्स अबव द नंबर, जो नंबर उससे ज़्यादा होगा, और हाइपो में यानी बिलो और लेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, सब देखते हैं एक एक करके. अनयूप्लॉइडी में मोनोजोमी, मोनोजोमी में 2-1, 2-1 मीन्स यहाँ पर डिप्लॉयड कंडीशन है, यानी कि 2 सेट है, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, 2 सेट. बट एक सेट में क्या है, 1 क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं है, दिस क्रोमोसोम इज मिसिंग, सो 1 क्रोमोसोम इज लेस, सो इट्स व्हाट मोनोजोमी, 1 क्रोमोसोम इज व्हाट लेस. सो टोटल इंस्टेड ऑफ कैन से 8 क्रोमोसोम, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है, 4 and 3, टोटल कितने क्रोमोसोम है, 7 क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम यहाँ पर कम है. सो दिस इज मोनोजोमी. नलिजोमी में क्या है, हर एक सेट में 1-1 क्रोमोसोम है. द फर्स्ट सेट, ये जो फर्स्ट सेट है उसमें 3 ही क्रोमोसोम है, और सेकंड सेट में कितने, 3 ही क्रोमोसोम है. यहाँ आपका 1 क्रोमोसोम ये वाला और ये वाला, सो -1 यहाँ पर, ये -1 यहाँ पर है. सो दिस इज व्हाट कैन से n, पहले सेट में n-1, दूसरे सेट में भी क्या है, n-1 है. सो बेसिकली यू कैन से n-1 मीन्स 2n-2. नलिजोमी में 2n-2 दिखा देता है यहाँ पर. ओके, सो हाइपो मीन्स लेस और कैन से बिलो, जो ओरिजिनल नंबर होना चाहिए था या डिप्लॉयड नंबर होना चाहिए था उसमें एक तो 1 क्रोमोसोम कम है, या यहाँ पर 2 क्रोमोसोम कम है. यहाँ का एक सेट का 1 क्रोमोसोम कम है, यहाँ पे दोनों सेट का 1-1 क्रोमोसोम कम है. सो बेस्ड ऑन दैट दिस इज कॉल्ड मोनोजोमी. 2n-1, 2n-2 इज व्हाट नलिजोमी. सो दिस इज पार्ट ऑफ हाइपोप्लॉइडी. और ये क्या है, हाइपरप्लॉइडी. हाइपरप्लॉइडी मीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम का एडिशन है, 1 क्रोमोसोम ऐड हो सकता है, 2 क्रोमोसोम ऐड हो सकते हैं. तो एडिशन में भी इन 1 सेट या 2 सेट या सेपरेट क्रोमोसोम. जैसे ट्राइजोमी में देखो, यहाँ पर हाइपरप्लॉइडी में, ट्राइजोमी में 2n+1, सेट 1, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, दोनों सेट में 4-4 क्रोमोसोम है. सो डिप्लॉयड कंडीशन क्या है, 2n इज डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ पर वैसे कि वैसे. एडिशनल 1 क्रोमोसोम यहाँ पर होगा, सो दिस इज +1, दिस इज +1. सो 2n+1, दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी. हाइपरप्लॉइडी में ये ट्राइसोमी का एक केस है. क्या दूसरा केस है, टेट्रासोमी. टेट्रासोमी मीन्स 2n+2, 2n+2 है. सो दिस इज व्हाट हाइपरप्लॉइडी. सेट नंबर 1, ये देखते, सेट नंबर 1 में 4 क्रोमोसोम, सेट नंबर 2 में भी 4 क्रोमोसोम. सो ये हमारा डिप्लॉयड कंडीशन वैसे कि वैसे है, 2n प्लस एडिशनल 1 क्रोमोसोम, और दिस इज 1 मोर एडिशन. सो एडिशनल 1 + 1 यानी कि +2. सो 2n+2, दिस इज द कंडीशन, इज कॉल्ड टेट्रासोमी. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में हम क्या बोलते हैं, अनयूप्लॉइडी इज नॉट ट्रूप्लॉइडी. एडिशन और डिलीशन होता है क्रोमोसोम का. So whatever can say number of sets are there, maybe from 1 set there is can say deletion of 1 chromosome, maybe from 2 sets there will be deletion of 2 chromosome. इसके बेस पे हम बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी. क्रोमोसोम लॉस हो जाता है और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर बढ़ते हैं, और ये बढ़ने वाले क्रोमोसोम में भी 1 सेट में हो सकते हैं या 2 सेट में हो सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट दिस इज हाइपरप्लॉइडी. एंड हाइपोप्लॉइडी को यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया है. ओके, and we'll see this with can say a chart. Okay, so ये चार्ट में हम लोग देखते हैं.
So number of chromosome, ploidy is what? The number of chromosomes present in the यूकैरियोटिक सेल, जिसको हम बोलते हैं प्लॉइडी, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट. यूप्लॉइडी क्या होता है? सो ट्रू प्लॉइडी यहाँ पर होता है द एंटायर सेट इज व्हाट? डबल्ड और ट्रिपल्ड और कैन से 4 टाइम आ जाता है. व्हाट? मोनोप्लॉइडी, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉइडी, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ओके, यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. पॉली मीन्स मेनी प्लॉइडी, मोनी लेवल. सो 3n, 4n, 5n और कैन से एक्सेट्रा. लाइक कैन से 3n क्या होगा? 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 4n 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 5n 5 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. लाइकवाइज ऐसे आप प्लॉइडी लेवल बना सकते हैं. ज़्यादा हो जाता है कभी कभी प्लांट में. ऑक्टाप्लॉइडी होती है, हेक्साप्लॉइडी हुई होती है. दिस इज व्हाट? यूप्लॉइडी. अनयूप्लॉइडी में से क्या हम लोगों ने देखा? एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम. पहले देखते हैं डिलीशन. हाइपोप्लॉइडी यानी कि डिलीशन है, इसमें होता है मोनोजोमी, n2n-1, एक क्रोमोसोम कम है एक सेट में. इसमें 2 क्रोमोसोम 2 सेट से कम है, जैसे नलीजोमी. दिस व्हाट? लॉस ऑफ क्रोमोसोम. सेल से जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए उसमें से 2 क्रोमोसोम इसमें लॉस हो चुके हैं, ये नहीं है. दैट्स व्हाट? नलीजोमी. एडिशन मीन्स हाइपर, ओवर एंड अबव द सेट. 2 सेट्स में और ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी. सो ट्राइजोमी, 2n+1. और यहाँ पर टेट्राजोमी में कैसे? 2n+2, टेट्राजोमी. ओके, सो अनयूप्लॉइडी के 2 टाइप है. सो दिस इज द फिगर 3.5 गिवन इन योर बुक. आपके बुक में जो फिगर दिया वही फिगर मैंने उठाया यहाँ पर से. सो वी हैव सीन क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम एग्जैक्टली. उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखा, नंबर का क्या रोल होता है. सो उसमें प्लॉइडी, अनयूप्लॉइडी देखा. अभी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अब देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये स्ट्रक्चरली कैसे दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप, उसमें क्या क्या होता है. सो हम लोगों ने देखा केमिकली क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ व्हाट? डीएनए. डीएनए का बनता है क्रोमोसोम. उसके साथ साथ क्या होता है? डीएनए को पैक करने के प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है. सो वी कैन सी द स्ट्रक्चर नाउ. सो क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन अंडर माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का खोज होने के बाद लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंडर सेल्स को देखा. सेल को सेंड करने के बाद क्रोमोसोम दिखाई दिए. व्हेन द सेल्स आर इन मेटाफेज, जब सेल मेटाफेज में होता है यानी क्रोमोसोम जब डिवाइडिंग इसमें होता है, बराबर ना, कंडेंस्ड होते हैं क्रोमोसोम. उस टाइम कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम थिकर दिखा देते हैं, इसलिए वो मेटाफेज में दिखा देते हैं. करेक्ट. सो एट मेटाफेज, सेल डिवीजन का जो मेटाफेज होता है उसमें आपको क्रोमोसोम अच्छी तरह दिखा देते हैं. सो कैन इवन काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज. ओके, सो टिपिकल क्रोमोसोम, अगर कोई टिपिकल क्रोमोसोम होगा वो कैसे दिखता है. ओके, देखते हैं कैसे दिखता है. क्रोमोसोम हम लोगों ने अभी तक जितने बार मैंने ड्रॉ किया आपने देखा होगा. क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमेयर होता है. ओके, 2 आर्म्स होते हैं. ओके, दिस इज द क्रोमोसोम दैट वी आर सीइंग. बट व्हेन यू सी क्रोमोसोम एट मेटाफेज, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम कभी कभी ऐसे भी दिखता है, टेट्राड जैसा. ओके, नाउ द क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, सो दिस इज द क्रोमोसोम. व्हेन यू ऑब्जर्व क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप, अच्छी तरह उसको एक आप एनलार्ज करके देखें तो ऐसा दिखा देगा क्रोमोसोम. सो सेंट्रल पार्ट यहाँ पर होता है सेंट्रोमेयर, जिसको ये क्रोमोनिमा है वो अटैच हो जाते हैं. क्या होता है? क्रोमोनिमा इसको अटैच हो दिखाते हैं. दिस इज द मैट्रिक्स. ओके, और इसके अंदर आपको डीएनए दिखा देता है. करेक्ट, ये डीएनए दिखा देता है. बराबर. यस. ओके, नाउ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड. इसमें क्या होते हैं? 2 क्रोमैटिड दिखा देते हैं. कहाँ है क्रोमैटिड? आपको दिखा देंगे 2 क्रोमैटिड है. करेक्ट. ज्वाइंट एट सेंट्रोमेयर, ये 2 क्रोमैटिड है. ये कहाँ पर ज्वाइंट हो चुके हैं? ये 2 क्रोमैटिड कहाँ पर ज्वाइंट हो चुके हैं? ये यहाँ पर ज्वाइंट हो चुके हैं. सो दिस इज द पोर्शन, ये जो वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर. दिस सेंट्रोमेयर अगर आप अच्छी तरह स्टडी करेंगे, इसको क्या होता है? एक डिस्क शेप्ड प्लेट यहाँ पर दिखाई देती है. दिस इज द डिस्क शेप्ड प्लेट यहाँ पर दिखाई दी, डिस्क शेप्ड प्लेट. इसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर. इसको बोलते हैं काइनेटोकोर. दिस इज द प्लेस वेयर स्पिंडल फाइबर अटैचेस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. इसको जो फाइबर होता है क्रोमोसोम पुल करने के लिए, क्रोमोसोम को अगर खींचना है अपोजिट पोल की तरफ, तो उसको कुछ तो चाहिए. तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं यहाँ पर अटैच होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर, और क्रोमोसोम को अपोजिट साइड में पुल करते हैं. करेक्ट. सो दिस इज द काइनेटोकोर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन. सेंट्रोमेयर को ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बोला जाता है. करेक्ट. सो क्रोमोसोम्स दे कैन सीन अंडर माइक्रोस्कोप व्हेन द सेल्स आर इन डिवीजन. मेटाफेज में दिखा देते हैं. इस 2 क्रोमैटिड को अटैच करने वाला पार्ट हम इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर. और सेंट्रोमेयर में एक डिस्क होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर. करेक्ट.
प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है एंड वेयर द स्पिंडल फाइबर्स आर इजीली अटैच्ड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम को मूव करने के लिए, खींचने के लिए वो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ओके, अब स्ट्रक्चर में और डिटेल अगर देखना है तो सम क्रोमोसोम हैज एडिशनल 1 और 2 कंस्ट्रक्शन। कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में एडिशनल, ये जो होता है ना सेंट्रोमेयर, इसके ये जो सेंट्रोमेयर से अधिक यहाँ पर, कभी यहाँ पर ऐसे ना एडिशनल कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे 1 और 2 कंस्ट्रक्शन विच आर कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिखा देंगे, करेक्ट। एंड एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपको क्या मिलेगा? यू कैन सी सैट बॉडी, SAT, सैटेलाइट बॉडी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। सैटेलाइट बॉडी देखो, दिस इज सैटेलाइट बॉडी। द सैट बॉडी इज अटैच टू द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कभी कभी जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कुछ क्रोमोसोम में, देयर आर वेरी फ्यू क्रोमोसोम वेयर यू कैन सी द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इन सैट बॉडी। इवन यू कैन सी न्यूक्लियोलस विच इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 अगर होगा तो न्यूक्लियस उसको होगा, और 2 होगा तो उसको सैट बॉडी अटैच होगी, कुछ ऐसा बोला गया है। So these are the secondary construction where you can see attachment of satellite body, a sad body बोलते हैं उसको, or can say nucleolus, and they are having their own functions in can say chromosome या nucleus या protein synthesis, ribosome, इसमें उनके अलग अलग फंक्शन, ये हम बाद में देखेंगे। बट इतना ध्यान में रखिए, सैड बॉडी कहाँ पर होती है, न्यूक्लियोलस कहाँ पर होता है, काइनेटोकोर कहाँ पर होता है, द सेंट्रोमेयर कहाँ पर होता है। ओके, सो दीज आर द पोजीशन। सो पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम शोइंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड डिटेल्स। यहाँ पर जो आपके बुक में फिगर है 3.6, ये देखो, दीज आर द क्रोमैटिड्स। इनके अंदर जो होता है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्रोमोनिमाटा बोलते हैं, करेक्ट। और ये सेंट्रोमेयर है, ये न्यूक्लियस यहाँ पर दिखा देता है, बराबर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपने देखा यहाँ पर, ये टीलोमेयर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, टीलोमेयर होते हैं। दीज आर हैविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, क्रोमोसोम को बचाने का काम होता है। टीलोमेयर एक दूसरे को अटैच होने नहीं देते क्रोमोसोम को, करेक्ट। सो दीज आर व्हाट टीलोमेयर्स। सेकेंड, अभी देखते हैं एक एक पार्ट। यहाँ पर सेंट्रोमेयर जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, दिस इज व्हाट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। ओके, देन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है आपको, या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, यहाँ पर है। यहाँ पर सैट बॉडी दिखा देती है, न्यूक्लियस दिखा देता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नहीं, अपना सॉरी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 यहाँ पर आपको दिखा देगा। क्रोमोमेयर्स, अंदर आपको क्रोमोमेयर्स दिखा दे, टीलोमेयर्स यहाँ पर है। ओके, ऑल दिस आपको दिखा देता है। एंड द डीएनए, जो थ्रेड लाइक डीएनए होता है, तो पूरा डीएनए इस एंड से उस एंड तक आपको दिखाई देगा पूरा, ये करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आपको पता है। एंड दिस वेरी वेल कंडेंस्ड फॉर्म में आपको दिखा देगा, कॉइल्ड फॉर्म में दिखा देता पूरा। अगर आपको देखना है तो आगे आप आगे के फिगर में देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो ईच क्रोमैटिड, अगर एक क्रोमैटिड देखते हैं हम लोग, इसमें क्रोमोनिमेटा होता है, सेंट्रोमेयर मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा। ईच क्रोमैटिड कंटेन्स लॉन्ग अनब्रांच स्लेंडर हाईली कॉइल्ड डीएनए, हाईली कॉइल्ड डीएनए। ये जो डीएनए इज व्हाट लॉन्ग स्लेंडर। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम का, अगर यहाँ पर थोड़ा हम लोग और ओपन करके देखेंगे, थोड़ा इनलार्ज करके देखेंगे, हाईली कॉइल्ड डीएनए आपको दिखा देता है यहाँ पर। एंड देन दिस डीएनए इज व्हाट कैन से, आपको जो हिस्टोन प्रोटीन के उसके अराउंड ये ऐसे आपको टाई हुए दिखा देते हैं, कैसे उनका वाइंडिंग यहाँ पर ऐसे दिखा देता है, बराबर। सपोज डीएनए वायर जैसा है और ये कुछ ऐसा डिश जैसे उसके ऊपर ये ऐसे वाइंड किया जैसे आपको दिखाई देता है। कितने यहाँ पर उसके चक्कर लगाने, ये करना है, पूरा डिटेल में आपको बाद में स्टडी करना है। बट ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए ऐसे ऊपर से क्या करता है, बाइंड कर देता है। ओके, सो दिस इज हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर ये ऐसे बाइंड, और दिस आर द लिंकर डीएनए, ये लिंकर डीएनए बीच में। सो दिस आर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। सो ईच क्रोमैटिड कंटेन्स लॉन्ग अनब्रांच्ड स्लेंडर हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड कॉल्ड क्रोमोनिमा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोनिमा। यहाँ पर क्रोमोनिमाटा बोले ना, सो क्रोमोनिमा। एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ क्रोमैटिड, पूरा ये क्रोमैटिड का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको ये दिखाई देगा, करेक्ट। सो क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विच एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम टू अदर एंड। एक एंड से लेकर यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा यहाँ तक, एक एंड से दूसरे एंड से क्रोमो तक आपको दिखाई देगा।
So this is what the structure of chromosome that we want to learn. Okay, we are not going in detail, but basic part morphology chromosome की कैसी दिखा देती है, और chromosome के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको स्टडी करना है, जैसे DNA कैसे होता है, कैसे उसका कॉइलिंग होता है, ये आपको बाद में डिटेल स्टडी करना है, बट इस चैप्टर में क्या है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें देखना है. करेक्ट. सो दिस इज द, ये सेल है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम इनर्ज करके यहाँ पर दिखाया, और इसमें या डीएनए होता है. डीएनए किसके साथ एसोसिएट होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है. सो प्रोटीन एंड डीएनए ओके, उससे मिल बनता है क्रोमोसोम, और ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम सेल्स में होते हैं. जैसे हम लोगों ने देखा ह्यूमन के सेल में होते टोटल डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम, और गैमेट्स में जैसे स्पर्म होगा और ओवा होगा उसमें रहेंगे 23. ओके, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. नाउ क्रोमोसोम हम लोगों ने देखा उनकी लेंथ छोटी या बड़ी भी हो सकती है, थिकनेस कम ज़्यादा हो सकता है, सेंट्रोमेयर का पोजीशन भी अलग अलग होता है अलग अलग क्रोमोसोम में. सो बेस्ड ऑन दी कैन से पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर का जो पोजीशन है उसके बेसिस पे क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन किया हुआ है. ओके, एंड क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड और कैन से दे आर ग्रुप्ड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स. ओके, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. एंड दिस टाइप का जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम है किसके ऊपर क्लासिफिकेशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर. सेंट्रोमेयर का पोजीशन कहाँ पर है, काइनेटोकोर का पोजीशन कहाँ पर है. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोम. इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. ये इसका सेंट्रोमेयर यानी जो काइनेटोकोर यहाँ का जो पार्ट है ना, सेंट्रोमेयर का पार्ट एट द सेंटर, और उसके आर्म्स दोनों सेम साइज के है, और जो पार्ट है ये वाला, ये दोनों का सेम ही साइज का है. ये और ये पार्ट उसके एग्जैक्टली सेंटर में आपको मिलता है सेंट्रोमेयर. यहाँ पर आपको सेटेलाइट वगैरह वो दिखा देगा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ये जो सेंटर में आपको मिलता है सेंट्रोमेयर, और उसके दोनों साइड में आपको मिलता है 2 आर्म. सो अगर आप क्रोमोसोम को पुल करेंगे एक थ्रेड के सारे, स्पिंडल सारे के साथ, अगर ये पुलिंग के समय कैसे दिखा, अगर इसको हम यहाँ पर पुल करेंगे, यहाँ पर पुल करेंगे तो कैसे दिखा देगा, ये उल्टा वी ऐसे दिखाई देगा या ऐसे दिखाई देगा. एंड दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं वी शेप्ड क्रोमोसोम. व्हेन यू पुल दिस साइड, इसको हम यहाँ से अगर पुल करेंगे ऐसे, तो क्रोमोसोम पुल करते हैं, ये जैसे डेलिकेट होता है तो कैसे ऐसे वी शेप जैसे बनेगा, बिकॉज दोनों आर्म्स के सेम साइज के. सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मिडल में होता है उसका सेंट्रोमेयर. सेंट्रोमेयर की पोजीशन कहाँ है, मिडल पे, और इससे वी शेप्ड. दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक में सेंटर में तो उसका है नहीं, सेंटर में थोड़ा एक साइड में. सो ऑफ सेंटर, सेंटर के थोड़े एक साइड में. सो दिस आर्म, ये आर्म थोड़ा उसका बड़ा है और ये आर्म उसका छोटा है, और बीच में ये सेंट्रोमेयर है. दिस इज द सेंट्रोमेयर, बीच में ये सेंट्रोमेयर है. करेक्ट. सो सब मेटापेट ऑफ सेंटर, और ये इसको पुल करूंगा मैं तो इट विल लुक लाइक एन से एल जैसा दिखा देगा ये. करेक्ट. अगर इसको हम पुल करेंगे तो ये छोटा आर्म उसका है, ये ऐसे दिखा देगा, और बड़ा आर्म ऐसे दिखा देगा. करेक्ट. सो इट विल लुक लाइक ए एल शेप्ड. करेक्ट. तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँ ये ऐसा ही दिखाई देगा. करेक्ट. एल शेप्ड. सो सब मेटासेंट्रिक, ऑफ सेंटर में होगा सेंट्रोमेयर उसका, और शेप रहेगा एल शेप. अब तीसरा टाइप है एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक मीन्स इसका सेंट्रोमेयर ऑलमोस्ट ना सेंटर से बहुत दूर, बट नॉट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम. इसके एंड में नहीं है, दूर है सेंटर से. सो यहाँ पर आपको एक आर्म बहुत बड़ा दिखा देगा और दूसरा बहुत छोटा दिखा देगा. करेक्ट. एंड दिस इज द सेंट्रोमेयर, यहाँ पर सेंट्रोमेयर है. दिस एक्रोसेंट्रिक नियर द एंड, और इसको मैं पुल करूँगा ये, तो दिस विल लुक लाइक कैन से जे, इंग्लिश लेटर है उसका जे जैसा दिखा देगा, ऐसे. करेक्ट. ये दिखा देगा आपको ऐसे. करेक्ट. सो जे शेप्ड, ये स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, जे शेप्ड. यस. ये रहेगा आपका एल शेप्ड, ये रहेगा जे शेप्ड, लंबा क्रोमोसोम थोड़ा ऊपर थोड़ा ऐसे, ये सेंट्रोमेयर है, ये कुछ ऐसा दिखा देगा, और ये यहाँ पर रहेगा ऐसे. ये रहेगा आपका एल शेप्ड, एंड दिस विल बी अ वी शेप्ड. करेक्ट.
और फोर्थ वाला टीलोसेंट्रिक, जैसे टीलोमेर एट द एंड होते हैं क्रोमोसोम के, वो टीलोसेंट्रिक, एक साइड में उसका सेंट्रोमेर है और एक ही आर्म यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे टीलोसेंट्रिक एट द वन एंड एंड इट विल लुक लाइक एन आई शेप्ड। ये कैसे दिखा देगा? आई शेप दिखा देगा ऐसे। ओके, सो बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेर we can classify chromosome into 4 type: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. Correct? Yes, I think it's easy to understand. सबसे कैसे easy part है ये क्रोमोसोम का समझने में। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट का हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ओके, now what are sex chromosomes exactly? क्या होता है एक सेक्स क्रोमोसोम? The chromosomes which are responsible for, क्या है? क्रोमोसोम्स, कौन से क्रोमोसोम? जो क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए जो क्रोमोसोम यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और उनको क्या बोला जाता है? दूसरे नाम से आलोसोम्स भी बोला जाता है। करेक्ट? ऑटोसोम्स, आलोसोम्स, ऐसे 2 टाइप से क्रोमोसोम होते हैं। जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। The chromosome which are not involved in sex determination को ऑटोसोम्स बोलते हैं। करेक्ट? सो अलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बीइंग एंड अदर मैमल, जैसे मैमल्स, ह्यूमन बीइंग जैसे जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमन इज ऑल्सो मैमल, सो ह्यूमन बीइंग एंड मैमल्स कैन से हैव एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम उनके होते हैं। And these chromosomes are what? Sex chromosomes. These are what? Sex chromosomes. Because these chromosomes, they are involved in determination of sex. Okay? अब X और Y क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं? तो फिगर में हम देखते हैं कि X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, दिस इज व्हाट, ये हमारा X क्रोमोसोम है और ये Y क्रोमोसोम है। करेक्ट? ये है Y क्रोमोसोम। यस, अगर ये Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम में आपको डिफरेंस देखना है तो क्या डिफरेंस होगा आपको यहीं पे दिखा देता है। Y क्रोमोसोम का एक पार्ट लंबा है, बराबर ना, ये लंबा पार्ट है एंड इट्स वेरी सिमिलर टू X क्रोमोसोम, बराबर। एक लंबा पार्ट जो ये और ये दोनों सिमिलर है, इसलिए उनको क्या बोला गया? होमोलोगस रीजन या होमोलोगस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। करेक्ट? ये उसका लंबा है एक्स क्रोमोसोम का, ये छोटा है, दिस इज व्हाट, सिमिलर नहीं है, इसको बोला है नॉन होमोलोगस रीजन्स। ओके, और दोनों के सेंटर में यहाँ पर है। सो दिस आर व्हाट द पार्ट्स और कैन से सेंट्रोमेयर वेयर काइनेटोकोर होता है और वहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। करेक्ट? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। सो दिस पोर्शन इज व्हाट? नॉन होमोलोगस, इसको बोलते हैं हम नॉन होमोलोगस और इसको बोलते हैं होमोलोगस। ओके, नाउ डिफरेंस देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम वो फीमेल में होता है, मेल में होता है, बट एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल से आता है उसमें क्या क्या रहेगा, वाई क्रोमोसोम मेल में जो डिटरमाइन करता है तो उसमें क्या क्या रहेगा, वो कैसे है, उसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंस। ओके, ये फिगर मैंने यहाँ पर दी, ये फिगर और डिफरेंस एक बार हम लोग थोड़ा मैच करते, देखो क्या होता है। एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर लिखा है और वाई क्रोमोसोम यहाँ पर लिखा है। करेक्ट? उसके जो फीचर्स है यहाँ पर है और एक्स क्रोमोसोम की यहाँ पर है। सो एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर, स्ट्रेट एंड रॉड लाइक। जो एक्स क्रोमोसोम कैसे है? कैसे है? लॉन्गर है, लंबा है, स्ट्रेट है, रॉड लाइक है। वाई क्रोमोसोम इज शॉर्टर, ये एक वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, जो हम लोग ने पहली बार देखा, पहले फिगर में वही देखा, एक लंबा और एक छोटा। एक्स क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक, हम लोगों ने भी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखे, वहां पर मेटासेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमेर एट द मिडल, दोनों आर्म उसके ऑलमोस्ट सिमिलर है। करेक्ट? सो मेटासेंट्रिक। बट वाई क्रोमोसोम कैसे? इट्स एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मीन्स ये जे जैसा दिखा देगा, हम लोगों ने बोला था ना, ये उसका सेंट्रोमेर, उसके बाद एक छोटा आर्म और ये बड़ा आर्म। Correct? This is acrocentric. Large amount of E chromatin and less amount of heterochromatin. उसमें अगर देखा जाए एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ई क्रोमैटिन, यू मीन्स ट्रू क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन नहीं, ज़्यादा क्या है? यू क्रोमैटिन, इसमें यू क्रोमैटिन ज़्यादा होता है, हेट्रोक्रोमैटिन ज़्यादा नहीं होता। सो हेट्रोक्रोमैटिन ई क्रोमैटिन इज बेस्ड ऑन व्हाट कैन से, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कंडेंसेशन ऑफ डीएनए।
अगर ज़्यादा कंडेंस डीएनए है तो उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, लेस कंडेंस इसको यूक्रोमैटिन, या उल्टा है। सोचो एक बार, हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन, इज इट कैन से कंडेंस्ड और नॉन कंडेंस्ड, एक्सटेंडेड नॉट एक्सटेंडेड, कैसे आपको बता कर लेते थोड़ा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इतना तो फर्क ध्यान में दो, यूक्रोमैटिन इसमें ज़्यादा होता है, हेटेरोक्रोमैटिन यहाँ पर कम होता है। यहाँ पर देखो लार्ज अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन यहाँ पर ज़्यादा है, यूक्रोमैटिन कम है। ओके, जेनेटिकली एक्टिव एज इट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो जेनेटिकली एक्टिव है। यहाँ पर क्या है, यूक्रोमैटिन कैसा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, इसलिए जेनेटिकली लेस एक्टिव, ये जेनेटिकली लेस एक्टिव है क्योंकि इसमें यूक्रोमैटिन कम है। यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन ये ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर जीन्स एक्टिव होते हैं, बराबर, जो जीन फंक्शनल जीन होते हैं वो होते हैं यूक्रोमैटिन में, और बाकी के जो नॉन फंक्शनल जीन होते हैं वो हेटेरोक्रोमैटिन में होते हैं। इसलिए हम कब बोलते हैं उसको, जेनेटिकली एक्टिव जो होता है यूक्रोमैटिन होता है। नॉन होमोलोगस रीजन कंटेन्स मोर जीन, ये जो नॉन होमोलोगस रीजन है इसका ये वाला पार्ट, ओके, दिस पार्ट कंटेन्स मोर जीन एंड नॉन होमोलोगस रीजन कंटेन्स लेस जीन, ये नॉन इसमें लेस जीन है, छोटा पार्ट इसलिए ज़्यादा जीन नहीं, कम जीन है, करेक्ट। जीन्स यानी कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन। ओके, एक्स लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस, जो एक्स लिंक्स यानी कि फीमेल से जो लिंक्ड जितने भी जीन्स है एक्सप्रेस होंगे, ऑल दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स लिंक्ड, जो होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन पे होते हैं द एक्स क्रोमोसोम। और यहाँ पर वाई लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, यहाँ पर होंगे वो। सो जीन्स जो होते हैं ना इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड जो जीन होते हैं, ये वाई लिंक्ड यहाँ पर रहेंगे, करेक्ट, दिस पोर्शन, एक्स लिंक कहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, दिस पोर्शन। सो दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन से डिफरेंस बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ओके, सो दिस इज द व्हाट डिफरेंस, ये सब डिफरेंस हम लोगों ने देखा। एंड अब देखो ये जो डिफरेंस क्यों मैंने अब यहाँ पर आपको दिया, बिकॉज दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज व्हाट द क्रोमोसोम दैट वी हैव सीन टुडे। सो बच्चों एक बात ध्यान में रखो कि आपको ये पार्ट कितना इजी कितना डिफ़िकल्ट, अगर आप एक एक पार्ट डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले टर्मिनोलॉजी समझ लो, एक एक शब्द समझ लो, ये शब्द अगर समझेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपका डेवलप होगा तो दिस वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बायोलॉजी बहुत इजी है समझने में, कब इजी, अगर इसको आप अच्छी तरह समझेंगे तो।